हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। स्टार्ट। Present revision petition has been preferred by the petitioner against the order dated 19/5/2017 passed by civil judge in bracket junior division bracket out Patiala, comma, whereby the application filed by the petitioner under order 7 rule 11 CPC for rejection of plaint was dismissed, full stop, para. Perusal of the record would show that earlier a suit for mandatory injunction was filed by the plaintiffs, full stop. Trial court decreed the suit wide judgment and decree dated 6/7/2018. However, the lower appellate court wide judgment and decree dated 4/4/2011 remanded the case to the trial court for fresh decision, full stop. Thereafter, the plaintiffs did not appear before the trial court and the suit was dismissed under order 9 rule 8 CPC, full stop, para. The second suit was filed on the basis of alleged change of cause of action on 8/3/2015, full stop. In the second suit, defendant/petitioner filed an application under order 7 rule 11 CPC for rejection of plaint, full stop, para. Trial court dismissed the application, and that is how the present revision petition came to be filed, full stop, para. Learned counsel for the petitioner submitted that fresh suit is barred under order 9 rule 8 CPC and under order 23 rule 1 in bracket 4 bracket out CPC, full stop, para. On the other hand, learned counsel for the plaintiffs/respondents submitted that the terms of para numbers 6, 9, 13 and 14 of the plaint cause of action for filing the second suit is on different parameters, though the parties in both the suits are same, full stop. Learned counsel submitted that the plaint has to be read as a whole to find out whether it discloses a cause of action or whether the suit is barred under any law, full stop. Learned counsel referred to PV Guru Raj Reddy by GPA Lakshmi Narayan Reddy and another VP Niradha Reddy and others, full stop, para. I have heard learned counsel for the parties, full stop, para. Perusal of para number 6 of the plaint would show that factum of filing the earlier suit was pleaded only up to the stage of the decree passed by the trial court on 16/7/2008, wide which defendants were directed to vacate the house within a period of 2 months, full stop. The filing of the appeal before the lower appellate court, the order of remand passed by the lower appellate court, and thereafter dismissal of the suit by the trial court in default under order 9 rule 8 CPC were not pleaded by the plaintiffs in the plaint, full stop. Para number 9 of the plaint would show that when the defendants failed to vacate the portion of the house, the license to occupy the same was cancelled
and they were requested to vacate the portion within a period of 7 days through legal notice dated 18/3/2015, full stop. Failure on the part of the defendants to vacate the house, to hand over the possession to the plaintiffs, and by not filing the reply to the legal notice entailed in filing the fresh suit by the plaintiffs, full stop. In para number 13 of the plaint, comma, the plaintiffs have mentioned that no such or similar suit was filed earlier except the suit decided by the trial court, full stop, over. तो फ्रेंड्स ये 95 तक की स्पीड का डिक्टेशन है, ठीक है। घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा कि इतनी स्पीड में हम क्यों दे रहे हैं। एग्ज़ाम का टाइम करीब में है इसलिए दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। जितना आप इस पे हाथ चलाओगे या इस स्पीड के जितने भी डिक्टेशंस अदर यूट्यूब चैनल्स के भी होंगे या जिनके भी होंगे उन पे हाथ चलाओगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और एग्ज़ाम का मैटर आपको एकदम लगेगा एकदम फ्लो में जा रहा है, मतलब आपकी पकड़ के अंदर है वो, ठीक है। इस वजह से ऐसी स्पीड हमने रखी हुई है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और गाली देना हो तो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिक्टेशन हम ऐसे ही देंगे क्योंकि एग्ज़ाम का पीरियड है। एग्ज़ाम जब नहीं है तब 85 या 90 तक का चल सकता है, ठीक है। और जब एग्ज़ाम पीरियड आ जाता है तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, लेवल को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ता है, ओके। तो चलिए क्या है इसमें, नाम तो पटियाला PT अपवर्ड L हो जाएगा, अबव द लाइन पटियाला, ठीक है। और देखिए ट्रायल कोर्ट इसमें कैपिटल है, ठीक है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ज़्यादातर कैपिटल नहीं होता है, इतना हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अब मैटर में असल में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए ट्रायल कोर्ट का मैटर है, ये ट्रायल कोर्ट पे फोकस किया गया है, इसलिए सारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है मेन वो इसमें ट्रायल कोर्ट को दिए बताई गई है, इसलिए इसको कैपिटल कर दिया गया है, ओके। तो ये डिपेंड करता है कि मैटर किस पे है। हमने आपको बताया है कैपिटल स्मॉल डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मैटर में किस पे फोकस किया गया है, कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी को अगर ऊंचा दिखा दिया गया है तो उसको, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर जगह या इंक्वायरी ऑफिसर हर जगह कैपिटल नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं कैपिटल इसलिए होता है क्योंकि मैटर में उसको फोकस किया गया। तो आपको मैटर को समझना भी है कि मैटर आखिर किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है, वो किसके बारे में है, किसके लिए है, और कौन उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब सुपीरियर अथॉरिटी किसको बनाया गया है मैटर के अंदर, ठीक है। उस पर भी डिपेंड करता है। कैपिटल स्मॉल क्या है, बहुत माइन्यूट चीज़ है, बस मैटर को आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इसमें इसका मैटर का बाप कौन है, तो उस बाप को आप कैपिटल कर दो, सीधी सी बात, ठीक है। तो पटियाला हो गया ये, और कुछ नाम इसमें अचानक से ज़्यादा आ गए। रेड्डी तो बनेगा, रेडी जैसे रेडी बनता है वैसे ही रेड्डी हो जाएगा, ठीक है। गुरु आप केयर बना दो, सबसे सही, जैसे कुमार बनाते हैं वैसे कुमार को गुरु मतलब केयर बना के ऊ की वॉवल लास्ट में लगा दो आफ्टर में, ठीक है, थर्ड प्लेस पे, तो वो गुरु, उसको आप समझ लो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थ्रो द लाइन गे अपवर्ड आर बनाकर ऊ की वॉवल लगा दो आप, ठीक है, गुरु हो जाएगा। और लक्ष्मी कैसे बनेगा, L अपवर्ड L के और उसी में सर्किल लगा के M बना दो, ठीक है, और ई की वॉवल लक्ष्मी। नारायण हमने आपको बता दिया इन अवर ओपिनियन जैसे बनता है। N में R का हुक अबव द लाइन, N में R का हुक, फिर N में N का हुक, ठीक है, R का हुक लगेगा N में और लास्ट में N का हुक लगेगा, नारायण हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, निराधा रेड्डी, निराधा रेड्डी, निराधा के लिए थोड़ा अजीब सा नाम है, ये समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो N में R का हुक लगा के D केवल बना दीजिए और D को काट दीजिए धा के लिए, ठीक है, हिंदी का धा आना चाहिए तो उसके लिए काटा जाता है, हमेशा हमने बताया है। तो निराधा हो जाएगा, निर्धा से निराधा हो जाएगा। कुछ वर्ड कुछ नाम ऐसे होते हैं ना जो मैटर में याद रहते हैं आपको, ठीक है। अपने आप को थोड़ा, अपने सेंस को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि जो प्रेजेंट मैटर जो चल रहा है इसमें कुछ चीज़ें आपको कैप्चर करनी है, दिमाग में रखनी है कि क्या आया, रिकॉल करना है। तो आउटलाइन केवल रिकॉल के सेंस के लिए बनाई जाती हैं कि आप उनको देख के अपने वर्ड्स को रिकॉल कर सकें, ठीक है। अब
प्रॉपर जैसी स्पेलिंग है वैसी आउटलाइन अगर आप बनाएंगे तो आउटलाइन तो फिर हवा हो जाएगी, मतलब इतनी बड़ी आउटलाइन बनेगी जिसकी कोई सीमा, कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, इसीलिए ऐसी आउटलाइंस बनाई जाती हैं जिससे हम रिकॉल कर सके अपने दिमाग में कि हाँ ये बोला गया था। ओके, तो चलिए ये हो गया, बाकी और कोई नाम तो है नहीं, अगर कोई नाम छूटता है तो हमें आप बता दीजिएगा। ओके, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट आपका हम आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच। ये था दूसरा डिक्टेशन पंजाब हरियाणा के लिए, ताकि आपकी 2 डिक्टेशन से आपकी तैयारी थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो सके। ज़्यादा तो इंक्रीज़ हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो ऑन एयर चल रहे हैं, आपको अपनी तैयारी करनी है। बस कोशिश हम ये करेंगे कि आपको वैरायटी ऑफ डिक्टेशंस हम दे सकें अच्छी स्पीड में, ताकि आपकी तैयारी थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पे जाए। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भी सपोर्ट होगा वो हम करने को तैयार हैं। कमेंट हमें करके बताइएगा आपकी क्या ज़रूरत है, उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।